So let I request, because our chief guest, senior editor and chief editor of the Kanika Chronicle and the Odia Japarjabek, Odia Daily newspaper, leading daily paper of Odisha, because he has to leave this place because his flight is around 6:45. Let I give him my, let I request him, he will give some constructive and positive suggestion regarding this meeting. Mr. Sunil Misra ji, Chairman, Apex Body of Working Journalists Association of India, inaugurator of this meeting, Shri Vibhuti Rai ji, guests of honors and special guests, Professor Manas Mahapatra ji, Advocate Gautam ji, Advocate Nagar ji, associations, trade unions of media bodies, they have been fighting for the cause of journalists for the last so many decades, over the years. All organizations, all trade unions and associations are fighting for the same cause. Their path may be different, but objective is, goal is the same, for the welfare, protections of my fellow journalists. So Mr. Misra, one of the senior most Odia journalists from Odisha. So he has a courage to form a all India level associations to unite my journalist friends across the state, across the nation. So it's a 4-5 months baby, you may call Apex Body of Working Journalists Association. It's a 4-5 months baby. 5-6 months back, he just he had told me to organize a meeting here in Delhi in Press Club of India just to inaugurate this organization. But fortunately or unfortunately could not happen. Then he has to set his plan and programs and started and they were all having good rapport with journalists in the Club of India. Whenever I come to Delhi, I just visit. I visit Press Club. To visit Press Club is there, is in our menu. You may call in our agenda. Always we visit Press Club of India. So I thank all my esteemed guests and audience. So I'm sorry I cannot enjoy the food program. I cannot attend because my time is 6:45. I have to leave directly here from the airport. I again thank you all for coming and attending this meeting, and thanks to Mr. Misra and Professor Mahapatra for organizing such a beautiful press club में 2019 में एक केंद्रीय मंत्री आए थे, यहाँ हमारा एक कार्यक्रम हुआ था, अक्सर मंत्री वगैरह सब आते हैं, तो लॉन में हुआ था कार्यक्रम, ऑलरेडी लोग आ चुके, तो ये इतना, मतलब ये पूरा इंडिया है, ये इंडिया है, क्योंकि सारे स्टेट से 1-2 जर्नलिस्ट फ्रेंड्स आए थे, और वो लोग सब मीडिया बॉडीज का, कोई प्रेसिडेंट था, कोई सेक्रेटरी था, वो लोग जर्नलिस्ट का रिप्रेजेंटेटिव थे, तो फिर उन्होंने तुरंत बोला अच्छा हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, तो हम सोचते हैं कि भीड़ होता है, तो फिर वी आर रिस्पॉन्सिबल इन बिल्डिंग द नेशन एंड टेकिंग द नेशन फॉरवर्ड, एंड जर्नलिस्ट का having some added responsibility, and journalists are duty bound. एक सिटीजन कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन एक somebody the perception of the nation, एक नैरेटिव सेट कर देता है एक मीडिया या एक जर्नलिस्ट, तो इसलिए उनको he or she has to very careful while he writes. और मीडिया एक ऐसे फील्ड है such as every field in public life, every field, एक ही फील्ड मीडिया है जो हर क्षेत्र को टच करता है, तो इसलिए नेशन बिल्डिंग में, नेशन तो हम लोग बनाते हैं, वी द पीपल, हम लोग नेशन बनाते हैं, तो जर्नलिस्ट जब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उनका तो दायित्व बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़। एंड मिस्टर मिश्रा
Amram ji, Mr. Mishra is a wonderful man. एक जो बोलते हैं ना, एक मतलब साहस, मतलब इनसे आप सीखोगे। जो साहस होता है मतलब आप इनसे सीखोगे। मैं भी इनसे कुछ मतलब सीखा है। 4 महीने में 4 स्टेट में इन्होंने अकेला। फर्स्ट मीटिंग दिल्ली में होना था, हमने जो बोला ना 5th मीटिंग। तो एक इनके बारे में कभी नेक्स्ट टाइम जब हम लोग दिन भर यहाँ कार्यक्रम होगा बहुत सारे कार्यक्रम होगा प्रेस क्लब में, बहुत सारे होगा। तो You know, time is very precious, very auspicious, very valuable for our, not for any individual. You have not come to the time. Let's try to beg excuse before you all. I do request Tarun Shastri, he will chant Veda and other few mantras. पहले से निजी कारण भी कई हो सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन में सरगम चांसेस बनते हैं। लेकिन जब मैं आज पत्रकारिता के बारे में सुनता हूँ, आवाज जब इंडिया की हो और सिटीजन की चर्चा हो, तो मैं आपको प्राचीन भारत में लेके चलता हूँ जहां पर पत्रकारिता की शुरुआत होती है। एक ऐसे युग की कल्पना करते हैं जहां पर ना टीवी थे, ना फोन थे, ना लेखन का भी प्रक्रिया नहीं थी। लेखिका भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। उस समय की चर्चा कर रहे हैं जब ऋषियों ने रिसर्च करना शुरू किया, तो सबसे पहले पत्रकार जो हुए वो नारद जी हुए। अब आप लोगों को शायद मेरे बात से सहमति, क्योंकि पत्रकार जल्दी से अपनी भाषा में सब सहमत तो हो सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी एक सोच है कि वहां से पत्रकारिता शुरू होती है नारद जी से। क्या तरीका था कि नारद जी ने एक जगह की बात दूसरी जगह कैसे पहुंचेगी, तो नरम ज्ञानम ददाति इति नारदा, संस्कृत में इसका व्याख्यान किया गया कि जो हर एक इंसान को सच से अवगत कराए, जो ज्ञान दे, वो नारद, और जो सच से अवगत कराने का कार्य करता है वो पत्रकारिता और मीडिया करती है। इसलिए मैं पत्रकारिता का बहुत आदर करता हूं और सम्मान करता हूं, इसलिए कि जब धर्म की बात करता हूं तो मैं धर्म के 4 पद बताए गए, 4 कदम है धर्म के। क्षमा चाहता हूं, मैं अपने तरीके से उसका प्रोटेक्शन कर रहा हूं। 4 पद बताए गए। 4 पद में धर्म के 4 पद कौन कौन से हैं, जिसमें सत्य, शौच, दया है ना, परोपकार, ये 4 पद है। और मैं समझता हूं कि मीडिया के भी 4 ही पद है, जो निष्पक्षता है ना, जहां सबसे पहला कदम होता है निष्पक्षता, उसका यथार्थता यानी सत्यता, उसकी क्रेडिबिलिटी, वो तय कौन करेगा। आज जब प्रश्न उठता है, मैं अब हैरान तब हूं कि कई बार मुझे लगता है कि एक पत्रकार गए एक गांव, बहुत दूर एक घटना घटी, तो छोटी सी घटना की ओर लेके चलता हूं। एक बहुत दूर जाकर के घटना घटी है ग्रामीणांचल में, जहां मीडिया तो बहुत दूर है, वहां की आवाज भी शायद दिल्ली नहीं पहुंचती। तो हमारे एक चैनल के पत्रकार उसी जगह से बिलोंग करते थे, तो सोचिए यार एक काम करता हूं, मैं मिल के आता हूं उससे, वहां जाकर के आता हूं। तो वहां जाकर के उन्होंने वहां के पुलिस से कांटेक्ट किया। तो जब पुलिस से कांटेक्ट किया तो पुलिस वाले ने क्या कहा कि आप वहां जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जब हम हो तभी आप लोगों से वहां बात करना, अन्यथा आपका कुछ भी नुकसान हो सकता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस देश में आप क्या बोलोगे ये कुछ लोग तय करते हैं। हम अपनी आवाज, जिस दिन मीडिया को स्वतंत्रता मिल जाएगी ना, निष्पक्षता हो जाएगी, देश का बदलाव उस दिन प्रारंभ होगा। इसलिए आपका निष्पक्ष होना और आपको मुखर होना और दृढ़ शक्ति के साथ होना, ये आपके लिए नहीं, इस देश के भविष्य के लिए आवश्यक है। हमारे देश का मीडिया बहुत प्रभावशाली है। आप जानते हैं, मैं आजकल देखता हूं न्यूज चैनल सब जगह एक ही नाम चल रहा है। जो भी चैनल खोलो वो पता नहीं कौन है, वो एक लेडीज वहां पाकिस्तान से हिंदुस्तान के आ गई, चैनल के पास कोई मैटर ही नहीं बचा, जहां भी खोलो वही मिलता है मुझे। तो तब मुझे लगता है कि मुझे इस बात पर बोलना चाहिए। हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी आवश्यकता है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने की, और वो कार्य अगर कोई निष्पक्षता से कर सकता है तो केवल पत्रकारिता कर सकती है, वो आवाज ऑफ इंडिया कर सकती है, ये मीडिया करेगी। जानते हैं, मुझे दुख तब होता है जब एक व्यक्ति, कोई किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के अगर कोई बोल देता है ना, तो पूरे देश में आवाज उठती है। लेकिन वही जब गीता का अपमान होता है तो कोई बोलता है कि किसी में खबर ही नहीं छपी होती।
तब मुझे दुख होता है इस बात को सुन करके, देख करके कि ये कौन सी निष्पक्षता है। अगर मैं तिलक लगाता हूं, अगर मैं धागा बांधता हूं, तो क्या मैं आतंकवादी हूं इस देश में, उपेक्षित हूं? नहीं, हम सब लोग एक देश के नागरिक हैं, हमारा आवाज एक होनी चाहिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। Not doing it for me, if he is not helping to the needy people and backward people of the society, he knows nothing. So ideas makes man perfect. Let I request our special guest, honorable special guest, educationalist and president of Bharatiya Adim Jati Sabak Sangh of Delhi, the first president of this Bharatiya Adim Jati Sabak Sangh is our first president, Dr. Rajendra Prasad Sharma. The founder of this organization is Baba Thakur. He is the close associate of our Mahatma Gandhi. Let I requesting him. and most interested and founded working journalists and others who love journalism. मुझे बुलाया गया, हाँ, मुझे इस बात की खुशी आई कि ये जो रोड है, हमेशा हम सेकेंड डिवीजन में बात करते थे, इसलिए हम सेकेंड में है सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बहुत बनता सिटीजन ऑफ इंडिया में से हूँ। और अभी इस बारे में जो वर्किंग जर्नलिस्ट के बारे में कहा है, इस देश में करप्शन नहीं करते। चौथी संख्या साथियों आती है, इस देश के अंदर 1 साल से लेकर जो 20-22 साल तक का जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, वो करप्शन में शामिल नहीं रहता। उसका शोषण हो सकता है, उससे फीस ज्यादा मांगी जा सकती है, उसको हो सकता है पढ़ाया नहीं जा रहा हो, तो वो बच्चा भी करप्शन में शामिल नहीं रहता। ये मैं एक आबादी बता रहा हूं देश के अंदर, जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि इतने लोग तो करप्शन ही नहीं करते हैं। एक और संख्या आती है, जो अध्यापक है, जो पढ़ाने वाला, हो सकता है टीचर वो क्लास बंक कर दे, 1-2 पीरियड ना ले, उनकी संख्या भी लाखों में। ऐसे ही देश के अंदर 50 लाख आर्म्ड फोर्सेस के अंदर लोग हैं। मैं पुलिस को तो क्लीन चिट देता नहीं, पुलिस में तो मुश्किल से 2% लोग हैं जो ढूंढने पड़ते हैं, वो ईमानदार 2%। परंतु आर्म फोर्सेस के अंदर, चाहे वो आर्मी है, चाहे एसएसबी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, उनमें लोग करप्शन नहीं करते। और ये 50 लाख लोग करप्शन से दूर हैं। अधिकारियों की बात नहीं कर रहा। तो ये साथियों, मैंने इतने लोगों की संख्या बताई। अब जो बचे लोग हैं, वो मुश्किल से 5-7 करोड़ लोग बचे हैं जो इस देश के अंदर करप्शन करते हैं। अब वो कौन लोग हैं? आप जानना चाहते हैं क्या इस बात को? साथियों, इस देश के अंदर 3 ही मैं चोर समझता हूं, क्योंकि आवाज ऑफ इंडिया है तो आवाज उठाई जाएगी। मैं इस उम्मीद के साथ दिल्ली आया हूं, फरीदाबाद से आया हूं। 3 कैटेगरी के लोग। नंबर 1, 1952 से लेकर आज तक जितने भी नेता हुए, यानी 1% तो बहुत बड़ी संख्या है जो करप्ट नहीं है। माननीय लाल बहादुर शास्त्री जैसे, गुलजारी लाल नंदा जी जैसे लोग, वो ही ईमानदारी के खाते में आते हैं। यानी 1% लोग भी जो नेता हैं इस देश के अंदर, वो ईमानदार नहीं हुए 52 के बाद से। 1% लोग। और ये जो नेता है ना, ये तब से लेकर आज तक सारे मिलाकर 1 करोड़ नहीं है।
कोई व्यक्ति स्टेट के अंदर भी मंत्री बन गया, एमएलए बन गया, वो भी आज सैकड़ों और हजारों करोड़ का व्यक्ति है। पिछले 9 साल में भी कोई एमपी एमएलए ऐसा नहीं रहा, मिनिस्टर ऐसा नहीं रहा जो अरबपति ना बना हो। तो इसका मतलब करप्शन तो खत्म नहीं हुआ। और उस रैली के अंदर ये कहा था कि भाइयों और बहनों, मैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिनके घरों में, जिनकी तिजोरियों में काला धन जमा है, वो अपने पैसे को कागज का टुकड़ा समझें और वो काला धन में लेकर आऊंगा। और इसके लिए मुझे चाहे 1 लाख युवा भर्ती करना पड़े। वो युवा बैठे थे सामने। ये 2019 की गोवा रैली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। आज तक काला धन नहीं आया। ये कोई क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, परंतु ये देश राजनीतिक लोगों से त्रस्त जरूर है। इसलिए इस बात को मैं यहां कह रहा हूं। तो इस देश का जो नेता है, यानी मेंबर पंचायत से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक, कोई अछूता नहीं है करप्शन से। साथियों, दूसरे नंबर पे एक और तरह के लोग आते हैं, इस देश का उद्योगपति। इस देश में जितनी भी नीतियां बनती हैं, बनाता कौन है? कार्यपालिका के लोग बनाते हैं, अधिकारी लोग बनाते हैं। और किसके कहने पे बनाते हैं? नेताओं के कहने पे बनाते हैं। और किसके लिए बनाते हैं? उद्योगपतियों के लिए बनाते हैं। कोई व्यक्ति अगर कहे कि इस देश के अंदर जो कानून बनते हैं, जो नीतियां बनती हैं, वो इस देश के किसान और मजदूर को, बच्चे को ध्यान में रख के, बुजुर्गों को ध्यान में रख के बनती हैं, महिलाओं को ध्यान में रख के बनती हैं, तो मैं इस बात से बहुत ही मतभेद और मतभेद रखता हूं। इस देश के अंदर जो नीतियां बनती हैं, इस देश के उद्योगपति को फोकस करके बनाई जाती हैं, जो बहुत ही शर्मनाक। आज जो हमारा देश है, क्योंकि आवाज ऑफ इंडिया के बीच में बैठा हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज हमारा देश पूंजीवाद के दौर से गुजर रहा है। पिछले 9 साल के अंदर हमारे देश में करीब 10,000 लोग अरबपति बने, यानी 10,000 लोग 10,000 करोड़ी हो गए। कोई व्यक्ति अगर कहे कि ये कैसे हो गई, तो ना तो सरकार के पास जवाब है। देखिए साथियों, मैं किसी प्रधानमंत्री का और किसी राष्ट्रपति का और किसी मंत्रियों का मैं तब गुणगान करने की बात करूंगा जब इस देश से पिछले 9 साल में एक भी भिखारी कम हुआ हो इस देश के अंदर। इससे ज्यादा और शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। आज भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो भिखारी हैं वो भारत में रहते हैं, वो भारत में भीख मांगते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और किसी भी बड़े मीडिया हाउस के दबाव में ना आए, क्योंकि संख्या बल हमेशा काम करता है। देखिए, मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जो सुनील मिश्रा साहब ने जो पहल की है देश के जर्नलिस्ट को इकट्ठा करने, ये मैं इनके काम को साधुवाद देता हूं। ये एक बहुत बड़ी पहल है। मेरा पीछे में उड़ीसा गया, झारसुगुड़ा, तो वहां भी उन्होंने बहुत बड़ा सेमिनार किया था। वहां पत्रकारों की कुछ मांग थी। पत्रकारों का काम इतना आसान काम नहीं है। बारिश में, तूफान में, युद्ध में, यानी हर मौके पर अड़े रहते हैं। कैसे भी हालात हो, वो लिखने से नहीं चूकते। अगर किसी पत्रकार की सैलरी नहीं है, तो मैंने कहा एक वीडियो जाता है, एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर जाता है, उसको सर्किट हाउस में जगह मिल जाता है, एक पत्रकारों को क्यों नहीं मिलता? तो इसीलिए हमने एक रिजोल्यूशन वहां किया था कि केवल मंत्री और कलेक्टर को छोड़ के
और किसी के लिए प्रायोरिटी में सर्किट हाउस में नहीं मिलेगा। जितना प्रायोरिटी उनको मिलेगा उतना प्रायोरिटी पत्रकार को भी मिलेगा। मेरे पिताजी भी पत्रकार रहे थे और मैंने बचपन से पत्रकारों का जो दुर्गति सब देखा है, और अभी भी इतना सालों के बाद भी यही हम देख रहे हैं कि पत्रकारों को जो, क्योंकि जितने मीडिया हाउस है उसका मालिक और उद्योगपति है, उसका मालिक कभी, और जितने मीडिया आप अखबार देखते हैं वो अखबार आपके खरीदने में नहीं चलता, एडवर्टाइजमेंट में चलता है। एडवर्टाइजमेंट कौन देता है? उद्योगपति देते हैं, सरकार देते हैं। सरकार का काम है एडवर्टाइजमेंट दो, मतलब अखबारों को चुप करो। आजकल गलत अंग्रेजी उसमें चल रही है, हमने पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ हमें। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, हमारा ये जो आवाज ऑफ इंडिया का, मैं इसके साथ शामिल इसलिए हुआ हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे सरकार के सामने हमारा आवाज कैसे पहुंचे, और पत्रकारों को फोर्थ स्टेट के रूप में हम कहते हैं, फोर्थ स्टेट है लेकिन है कहाँ? सरकार जुडिशियरी को अपना स्थान मिल गया, लेजिस्लेटर को अपना स्थान मिल गया, सबको अपना स्थान मिल गया, लेकिन मीडिया को जो कहते हैं फोर्थ स्टेट वो नहीं मिलता। इसलिए हम कोशिश करेंगे, करना चाहिए, हमारा प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। But we have to minimize it, because without your help and cooperation, it can't be possible. And today the topic is that role of journalist and the citizen of India in nation building. It is a most important for all. देश गठन करने के लिए हर लोग का योगदान है, हर लोग का कुछ ना कुछ काम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल जो जर्नलिस्ट लोगों का नहीं है। तो देश गठन के लिए सबका सहयोग चाहिए। सबको पहले आपको थ्रो करो फेयरनेस, पहले थ्रो करो फेयरनेस। अभी भी मैं यहाँ प्रमाण दे दूंगा, बंदूक है, रिवॉल्वर है, लाइसेंस मार के देखो, अगर मेरे को लग जाएगा तो मेरा नाम से कुत्ता डाल देना। ये प्रमाण भी हो चुका है, ये प्रमाण भी हो चुका है। मैं नेकेड किया, कितना रेकेड को मेरे को घेरो कर दिए, मेरा गाड़ी को, मैं गाड़ी से मेरे को भगवान याद कर दिया, मैं दूसरा गाड़ी में चला गया, वो गाड़ी को फ्रस्ट कर दी, मैं घर में आराम से। तो दुनिया में बहुत चीज देखा हूँ, बहुत अप एंड डाउन देखा हूँ, लेकिन मैं जो लाइन में चल रहा हूँ, जो फाइटिंग फॉर एक्जिस्टेंस, फॉर द वेलफेयर बेनिफिट्स ऑफ द जर्नलिस्ट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्नलिस्ट, एज वेल एज for the declaration of fourth pillar in pen and paper against of journalists in pen and paper with due notification, ये मस्त होगा 2024 में। ये जगत पिता जगन्नाथ जी के आशीर्वाद है, चिंता मत कीजिए। अभी हम लोग ये कुछ कार्यक्रम रखे हैं, ये आवाज ऑफ इंडिया, और एक तो डिसीजन लिया है, सुनिए। जब हम रायपुर में किए, वहां का पत्रकार बोले चीफ मिनिस्टर आएंगे, गवर्नर आएंगे, वो आएंगे, सो आएंगे। आई फील द टाइम वी हैव टेकन ए डिसीजन। The Awaz of India, the apex of body of India, never call to the Prime Minister, never call to any MP, any MLA, any Minister. Why you should run for them? Because you are having with pen and paper. I have become very clear that Honorable Parvati, Honorable Vice Chancellor is with us. Who needs any Prime Minister? Who needs any political leader? What they will do? By the mercy of the citizen of India, we are casting the vote. They become the Prime Minister, they become the MLA, they become the MP. Who cares them? At any moment we can boycott them. No problem for them. So we are proceeding in a positive and constructive way, with a peaceful way. We must succeed. भगवान का घर दूर है, अंधेरे नहीं, ये विश्वास रखो। मेरे को तो कोई नहीं बोलता है आपको 65 साल बाद, मेरे को कोई बोलता है 50 साल, 55 साल। मैं बोलता हूँ ठीक है रे, मैं तो ओरिजिनली 65 उम्र हूँ। तो काम करते रहेंगे, और मैं आपको दिखा के दूंगा। आई बिलीव इन प्रैक्टिकली, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माय एमएससी इन ईयर 1970 इन फिजिक्स, थर्ड करियर गोल्ड You know everybody is in not all science students are poor in English, but I started reading novel when I was class 7. My grandfather was DFO, my father was a DFO. I forgot to join in. I have also qualified ICS sector. I do forgo it because when I saw my father is a learned person. He was a DFO. He was making salute to the ill-fated minister.
MP Nagar, he's the platform anti-corruption fund. मैडम जी आइए। ये हमारे मैडम कहाँ गई? आ रहे हैं। रुकिए। नाम लिख देंगे जी। मैं आई डू रिक्वेस्ट फॉर्मर एडवोकेट जनरल, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, he do offer one certificate and bouquet, flower bouquet and one towel to Arun Kumar। अरुण जी आपका अरुण श्रीवास्तव नहीं? मैं तो यहाँ हूँ जी। नहीं, ये संजय सिन्हा जी। He is the chairperson of International Equitable Human Rights Social Council। आप अकेले कहाँ होगे? इधर आप इधर से पिक्चर आ जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मनोज जी जरा टिक करवा दीजिए। सब एक्टिव है सर। रुकिए, Thank you. आपको भी सामने जाने से अच्छा रहेगा। रुकिए। फीमेल है तो चप्पल जूता भी सबका आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है फीमेल। नमस्कार दोस्तों, सुनील जी हमारे साथ हैं। पत्रकारिता और पत्रकार को लेके जो है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस सर जी ने किया। तो सर जी क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारा पत्रकार जो है उनके लिए कितनी मुसीबतें जो है सरकार की तरफ से भी है और सुविधाएं भी कुछ नहीं मिल रही हैं, तो किस तरह की मुहिम आपने चलाई है जिससे जो है पत्रकार जो हैं वो अपना जीवन गुजर बसर कर सकें? जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपका ये चैनल माध्यम में मैं भारत सरकार को एवं ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करता हूं, उनको आह्वान करता हूं, उनको निवेदन करता हूं कि मैं सुनील मिश्रा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हूं और मैं चेयरपर्सन हूँ एपेक्स बॉडी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आवाज़ ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि हमारा जो आवाज़ ऑफ इंडिया वो सब पत्रकार को वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू यूनाइट ऑल जर्नलिस्ट इन वन प्लेटफॉर्म। एंड हम चाहते हैं कि पत्रकार तो रियल फाइटर है, रियल फिलांथ्रोपिस्ट है, रियल सफरर है, कि उसका सरकार उनको ध्यान दीजिए, पर्सनली उनका वेलफेयर कीजिए, बेनिफिट कीजिए, उनका प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि वो तो सब रिस्क उठाता है। कोविड में कौन रिस्क उठाए? देश में जनता को कौन न्यूज़ देता है? वो तो पत्रकार ही देता है। सबके सामने फास्ट सोल्जर कौन है? पत्रकार है। उनका कुछ सुविधा नहीं है। दूसरी दुखद की बात है कि 77 ईयर्स हो गया भारत स्वाधीन का, दुनिया भर की भारत में संघ पत्रकार संघ है, लेकिन हमको अभी तक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया 4 पिलर हिसाब से। जो हमारा संविधान है, जो 4 पिलर बोलते हैं, 3 जो पिलर है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, दे आर एंजिंग लाइक एनीथिंग, दे आर गेटिंग ऑल बेनिफिट्स। तो हु हैज गिवन देम द पावर? इट इज नोन टू ऑल दैट जी आवर रेवेन्यू जो होता है, सिंगल पैसे शुड नॉट बी मिसयूटिलाइज, दे आर मिसयूटिलाइज, जॉइनिंग हैंड विद ईच अदर। मिली भगत है, रैकेट है, तो हमारे हाथ में पेन एंड पेपर है, हम एक्सपोज करना चाहिए, हमको डरना क्या चाहिए? आज़ादी का अमृत महोत्सव का आज चल रहा है 75वां, और वो मनाया भी जा रहा है। तो क्या लगता है कि अब तक जो है जब से देश आज़ाद हुआ है, पत्रकारों के लिए कुछ भी न किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, न उनको स्थायी निवास है, न उनको 60 के बाद न पेंशन है, और अब जो है मोदी जी चाहते हैं कि हम 2047 जो है 100वां अमृत महोत्सव काल की तैयारी करेंगे। तो क्या लगता है आपको 25 सालों में हमें वो न्याय मिल पाएगा? मैं क्या बोलता हूँ, पत्रकार को 2024 जनरल इलेक्शन बिफोर में वो गवर्नमेंट विल बी कंपेल्ड टू डिक्लेयर 4th पिलर, पेन इज माइटर टू शोर। मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इलेक्शन बैकआउट करा जाएगा। अरे ये क्या ते लोग एंजॉय करेंगे? वो लोग हमको, मैं देखा पत्रकार लोग, उड़ीसा का सीएम क्या कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस 2 लाख से 5 लाख कर दिया। धन्यवाद देते हैं कि कोई किसका पैटर्नल प्रॉपर्टी है,
उसका कोई हाथ से देता है 2 लाख का 5 लाख, ये हमारा हक है। पत्रकार को इंश्योरेंस देना सरकार का काम है, हम भी एक अंग है, सरकार का पार्ट है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा संविधान में सब बोलते हैं कि 4 पिलर है, तो 3 पिलर जो है क्यों फायदा लेंगे और पत्रकार क्यों नहीं देंगे? तीनों ही फायदा ले तीनों फायदा लेते हैं। जब आप जाएंगे, इतना दुखद की बात, टूल गेट में लिखा है पत्रकार आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट। अरे वैभव नहीं होता है, व्हाट इज दिस? आपके पास पेन एंड पेपर है, नंगा करके लिखो, एक्सपोज करके लिखो, बस न्यूज स्टोरीज आर्टिकल शुड नॉट बी कंट्रोवर्शियल, बेसिंग ऑन ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी। और मेरा उम्र 65 हुआ, मैं आपको ये वर्ड देता हूँ, स्ट्रांग वर्ड देता हूँ, 2024 बिफोर जनरल इलेक्शन द गवर्नमेंट विल कंपेल टू डिक्लेयर द जर्नलिस्ट एज 4th पिलर। देयर इज नो डाउट, विथ पेन एंड पेपर, विथ गवर्नमेंट ड्यू नोटिफिकेशन। और जो 5 साल का एक MLA MP होता है, उनको पेंशन देते हो, उनको तनख्वाह देता हो। अरे क्या ये रेवेन्यू को मिसलाइज क्यों करते हैं? और पत्रकार को क्यों नहीं देंगे मंथली सैलरी और पेंशन? ये सब जो प्रिटेंशन चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, ड्रामा को क्लोज करा जाएगा। क्योंकि मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जगत के नाथ जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है, और मैं देख रहा हूँ भी जगन्नाथ जी का आशीर्वाद। आवाज ऑफ इंडिया आज तक 4 स्टेट कवर किया है, ह्यूज गैदरिंग, ह्यूज सपोर्ट, क्या नहीं मिलता है? मैं तो खुद मिराकुल होता है, मैं खुद आश्चर्य, आई बिकेम एटेल ऑफ, आई बिकेम सरप्राइज, एटूनी से लेकर नहीं। तो मेरा पूर्ण विश्वास है जरूर होगा, बिकॉज देयर इज ए गॉड, ही इज ऑलवेज chanting yes, 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 opening his eyes. I am in yes, and the God will most bless the journalist. Within 2024 general election, the government must have to declare the journalist is the 4th pillar of the constitution with pen and paper, with due notification. Thank you to all. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस भी तरह का धन्यवाद। मैसेज जो है आपको धन्यवाद। पत्रकारों के लिए दिया है, आपको धन्यवाद। और लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जागेगी, जरूर और जागेगा। पत्रकारों के लिए कुछ न कुछ देगी, जरूर जागेगा। जिसमें जो है निवास भी है और सब पेंशन मिलेगा। भी है, सब मिलेगा। और हम सबको एकजुट होना होगा पहले। Yes, yes. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पवित्र महंत सामंतराय, उड़ीसा, भुवनेश्वर। उड़ीसा भुवनेश्वर से आज हमारे साथ हैं। यहाँ पर पत्रकारिता और पत्रकारों को लेके एक मीटिंग चल रही है, जिसमें बहुत सी बातें जो है सर ने बता दी हैं। तो जो कुछ बातें जो आप कहना चाहते हैं, जो हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है आज़ादी का, जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, तो ये जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज हमें करने पड़ रही हैं, क्या हम रुक जाएंगे? यहाँ पर हमारा देश पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, समाज सुधर जाएगा, पर्यावरण को लेकर समस्या है, बेटियों के साथ रेप, मर्डर, हत्या हो रही है, और बहुत सी और विकृतियाँ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारत बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है, पत्रकारिता में भी मतलब काफ़ी बदलाव आया है। तो लेकिन पत्रकार लोगों का जो बेसिक जो चीज़ है, जो पत्रकार लोगों का जो सुरक्षा है, उनका जो उनके बारे में उनका जो हित है, जो सरकार के हाथ में है, तो वो सरकार थोड़ा उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देगा तो ठीक रहेगा। लेकिन सारे जो आज जो आवाज़ इंडिया जो एक संगठन है, जो पत्रकार लोगों का प्रोटेक्शन के लिए, उनका हक और अधिकार के लिए मतलब फाइट कर रहा है, तो वो भी वही मतलब दिशा में मतलब जा रहे हैं कि पत्रकार लोगों को यूनाइट करेंगे और सरकार के सामने उनका जो सुविधा है, जो सुरक्षा है, तो बस। और भारत तो ऐसे ही मतलब हजारों सालों का मतलब हम लोगों का देश है, पत्रकारिता आगे अच्छा मतलब उनका भविष्य अच्छा है। पत्रकारिता का भी और पत्रकारों का नहीं, पत्रकारों का अच्छा नहीं है, इसीलिए हम लोग सब लड़ रहे हैं। हाँ, हम लोग इसीलिए, उम्मीद है आपको? हाँ बिल्कुल, कि पूरा हो जाएगा बिल्कुल, जो आपकी इच्छा है। पत्रकारिता अच्छा है, लेकिन पत्रकार लोगों का जो समस्या है वो अच्छा नहीं है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं सब लोग मिल। सफलता मिल जाएगी, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पात्रा जी, थैंक यू। थैंक यू।